let's just move on to the next question. After question number 1, let's quickly go on to question number 2. ठीक है? Okay, let's do question number 2. और question number 2 के साथ एक diagram भी है, ये वाला diagram है. So we'll paste that too in our question. चलो, let's make a start. I have to put this diagram here. Okay. ये डायग्राम के बिना ये प्रॉब्लम नहीं हो सकता. ठीक है? So figure 8.36, sorry 8.13. Let's start. Come on. So यहाँ पर what do we need to find? Let me place the diagram right at the corner. So यहाँ I need to find tan p minus cot r. Okay. So tan p minus cot r. Okay. So सबसे पहले tan p निकालना पड़ेगा. And out here as you can see, this is 90 degree. This is clear. But this QR is missing, right? 12 और 13 पता है. This QR is missing. So let's get the third side by Pythagoras theorem. तो यही करने का. अगर just write a note. If one side is missing, write a note in a right angled triangle. Okay, if one side is missing, then apply, I may say, then apply Pythagoras theorem to get it. Okay, Pythagoras theorem to get it. Okay. Okay, fine. So as you can see, following this note, let's apply Pythagoras theorem. तो Pythagoras theorem क्या कहता है? 90 के सामने वाला hypotenuse का square. So PR square will be बचे हुए, that is PQ plus QR. So from here, PR square will be 13 square. This will be 12 square plus QR square. So 13 square is 169. 12 square is 144 plus QR square. एक काम करो, bring this here. So 169 minus 144. कैसा क्या? Equal to के इस side लेके आ गया. So this will be QR square. And this will be 25. So this will be QR square. उल्टा करो. So therefore QR square is equal to 25. Right? Clear, very clear. So applying root out here. So QR 25 का root, and it is very clear that QR will be root of 25 is 5. So this guy is 5 centimeter. Okay, so fine. So हमें third side जो नहीं पता था वो भी मिल गया. From here this is 5 centimeter. Okay, since we know QR, that is 5 centimeter. Now let's get tan P. Okay, so tan P क्या होगा? तो tan p will be, what is tan? चलो, मुझे कुछ भी फॉर्मूला याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. आई नीड टू अप्लाई ओशा छोटा. ठीक है? tan मतलब यहाँ पर ये tan आता है. सो tan इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो tan p will be opposite of angle p upon adjacent of angle p. राइट? ओके. सो एंगल p क्या है? एंगल p यहाँ है. ये तो हमारा हाइपोटेन्यूस है, फिक्स है 90 के सामने वाला. तो व्हाट विल बी ऑपोजिट ऑफ एंगल पी? तो देख के बता सकते हो, इसके सामने 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 जाओ, क्यू आर. राइट? तो क्यू आर विल बी ऑपोजिट ऑफ एंगल पी एंड पी क्यू विल बी एडजेसेंट. राइट? देख के बता सकता हूँ. सो टैन पी विल बी ऑपोजिट ऑफ एंगल पी, दैट इज क्यू आर, और बचा हुआ ये पी, फिर पी क्यू बच गया. राइट? सो पी क्यू विल बी एडजेसेंट. राइट? ओके. उसी तरह से कॉट आर निकालो, देन सबट्रैक्ट. सो कॉट आर, अब कॉट आर क्या होता है? तो कॉट याद रखो टैन का उल्टा होता है. या राइट? हमने देखा था. तो कॉट होता है टैन का उल्टा. राइट? जैसा साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टा. नाउ रिमेंबर दैट उल्टा पुल्टा रिलेशन, फॉर्मूला नंबर 7, 8, 9. ओके, नहीं याद है तो जरा पीछे वाले वीडियोस में देख लेना. सो कॉट आर क्या होगा? इट विल बी एडजेसेंट ऑफ एंगल आर. राइट? एंगल आर है, अपॉन ऑपोजिट ऑफ एंगल आर. So tell me what is, first let's start with opposite. So opposite of angle R. So angle R यहाँ ये रहा, this is angle R. So tell me what is opposite of angle R. तो PQ is opposite of angle R. तो नीचे मैं लिख देता हूँ PQ. Right? And अगर ये opposite है of angle R तो बचा क्या? QR. QR will be adjacent of angle R. Okay? Fine. यहाँ पर भी वही concept है, जो angle P का opposite है वो R का adjacent है. ठीक है? Already हमने एक स्टफ देख लिया था. So this, let's substitute now. QR, you know it is 5 and PQ is how much? 12. Now this is QR is 5, okay, and PQ is 12. Right? बराबर. यहाँ पर PQ is 12. So therefore tan P minus cot R, tan P minus cot R, how much is this will be? This will be 5 upon 12
minus 5 upon 12. So 5 upon 12 minus 5 upon 12 will make it 0. ठीक है, सिंपल. सो बड़ा सिंपल है, हमने ओशा छोटा भी लगाया एंड वी गॉट द आंसर फॉर वॉट एवर वी नीडेड हियर. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर आफ्टर 2 नेचुरली क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं. इफ साइन इज दिस मच देन गेट द अदर टू. ओके, ठीक है, लेट्स रीड. ओके, इफ साइन ए इज 3 अपॉन 4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए. तो मैंने इसके लिए कॉन्सेप्ट 1 पढ़ाया था, याद है. अगर एक दिया जाए और बाकी पूछा जाए, व्हेन वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन एंड द अदर आर टू बी आस्क्ड, बाकी दूसरे पूछे जाए, तो उस केस में क्या करने का. तो रिमेंबर, अगर एक दिया जाए और दूसरे पूछे जाए तो याद है कांस्टेंट लगा के इक्वेट करो, मैंने बोला था. अब वो कंसेप्ट का यहाँ यूज होगा. ठीक है, सो लेट्स मेक अ ट्रायंगल. चलो, लेट्स कॉल दिस एज एंगल ए, सॉरी, साइड ए बी एंड सी. Naturally this will be 90 degree out here समझने के लिए, and ये हमारा है एंगल A, right? So apply sin A out here. So sin of angle A will be how much? This will be opposite of angle A, बराबर, opposite of angle A upon hypotenuse. So बड़ा clear है, opposite of angle A will be this guy. So मैं लिखूंगा इसको, this is opposite of angle A, right? And this is hypotenuse, right? Okay, so this is sin A, that is opposite of angle A will be BC, and hypotenuse is AC. So this is BC upon AC. Very clear? No problem. So from here, BC upon AC, but you already know that this is sin A is 3 upon 4. कहाँ से पता है? ये पता है ना, sin A is 3 upon 4. तो यहाँ लिखा C 3 upon 4. तो now write it like this: BC upon AC will be equal to 3 upon 4. Put a constant K. So let's say this is K, this is K. ठीक है, तो दोनों में K लगा दिया. साइड में ब्रैकेट में लिख देना K is a constant, and since you have put a constant here, let's put up BC, that is 3K, and let's put up AC, that is 4K. Okay, BC is 3K, AC is 4K. ठीक है, so चाहिए तो उन्हें यहाँ लिख दो. What is BC? BC is 3K, AC you know it is 4K. I'm sorry, not AB, जहाँ है जिसकी जगह वहीं लिखने का. ओके, AC is 4K, ब्रैकेट बना दूं. ठीक है, BC is 3K एंड उस 90 के सामने वाला हाइपोटेनस यू नो AC, तो 4K. ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें AB नहीं पता, राइट? हमें ये पता चल गया 3K, ये पता चल गया 4K. मिसिंग साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, दैट इज AC स्क्वायर विल बी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट? सो AC नहीं, हाँ पता है 4K है, तो 4K का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB. AB नहीं पता, कोई बात नहीं पता, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज 3K का स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर आई कैन से दिस इज 16K स्क्वायर, राइट? 4 का स्क्वायर 16, दिस इज AB स्क्वायर एंड दिस विल बी 9K स्क्वायर. ओके फाइन, सो जरा 9K स्क्वायर इधर ले लो, तो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर. So this is how much? This is 7K square, this will be equal to AB. So from here using this, I'm sorry, AB square, उल्टा लिखूं तो AB square will be equal to 7K का square. So take root on both sides, तो AB के वजह से root चला गया, तो this is root 7. K का square out of root will be 7K. So okay, so this is root 7K. ठीक है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल नो प्रॉब्लम. सो AB टर्न्स आउट टू बी, ये देखो सबके स्क्वायर उड़ा रहे थे ना, राइट? तो इसके रूट आ गया. सो दिस इज रूट 7K. कौन रूट 7K? AB. ओके, ठीक है, लेट्स मेक अ स्टार्ट. सो फ्रॉम हियर इफ आई जस्ट से ऑलमोस्ट आई नो एवरीथिंग नाउ, एक बार तीनों साइड्स मिल गए ना इन फॉर्म ऑफ K. नाउ अप्लाई कॉस थीटा. सो कॉस A क्या होगा? ओशा छोटा क्या कहता है? ओशा छोटा लिखने का, हमेशा लिखने का काम आएगा, इसमें C यहाँ पर काम आता है कॉस के लिए. सो कॉस कहता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. सो दिस इज एडजेसेंट ऑफ एंगल A. व्हाट इज दिस? दिस इज एडजेसेंट ऑफ एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो अगर ये ऑपोजिट ऑफ एंगल A है, ये हाइपोटेन्यूस हो, तो बचा हुआ तीसरा होगा एडजेसेंट ऑफ एंगल A, राइट? सो दिस इज एडजेसेंट ऑफ एंगल A. सो व्हाट इज एडजेसेंट ऑफ एंगल A? AB. So this is AB upon hypotenuse is very clear, AC. So this is how much? Root 7K upon 4K.
right? No problem. So from here, this will be equal to k cancel होएगा तो √7/4. This is how much? Cos A. Cos A. Cos A. Okay, fine. Okay, now let's do the next thing. Come on. Okay, last cos A निकाल लिया. Now let's get tan A. So what will be tan A? Tan A will be, what is tan? ये है tan, opposite upon adjacent. So it is opposite of angle A upon adjacent of angle A. So tan A will be opposite of angle A. Opposite of angle A is this one, BC. Right, already मैंने लिख चुका हूँ. This is opposite of angle A, this is adjacent of angle A. Upon adjacent of angle A, that is AB. So BC is 3k, AB is √7k. K cancel. So from here, tan A turns out to be how much? 3/√7. How much is this? 3/√7. तो हमें यहाँ से cos A भी मिल गया एंड tan A भी मिल गया. बड़ा आसान था. ओके फाइन. तो बेसिकली मैंने जो टेक्निक बताया वो यूज करके, कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया वो यूज करके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो हम निकाल सकते हैं. चाहे 1, 2, 3 हज़ार क्यों ना पूछा जाए, we can find out as many as you need. Okay, fine. So with this we complete with question number 3, right? Question number 3 यहाँ पर complete हो गया. Let's move on to the next question. That will be question number 4. Okay. अब थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हल्का हल्का बढ़ता जाएगा. ठीक है, कम ऑन लेट्स स्टार्ट. सो गिवन 15 cot A is 8, फाइंड sin A and cos A. तो देखो वो सेम कॉन्सेप्ट है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है और बाकी के निकालने. ठीक है, सो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. अगेन लेट मी ड्रॉ द सेम ट्रायंगल. सो आई विल जस्ट से दिस इज A, सो दिस इज एंगल A, राइट? A के सामने एंगल A हो जाएगा. दिस इज B एंड दिस इज C, अज्यूमिंग B इज दिस. ओके, देख के आप बोलोगे सर ये तो देख के पता चल रहा है A के ऑपोजिट, दिस इज ऑपोजिट ऑफ एंगल A और दिस इज एडजेसेंट ऑफ एंगल A, हमें पता है, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, राइट? इतना तो स्टोरी बहुत क्लियर है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो एक को यूज करो. सो सिंस इट इज गिवन 15 cot A is equals to 8. Okay, fine. Let's start. So 15 cot A is equal to 8. So जरा 15 को नीचे ले लो ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे. तो अब दिख रहा है ये रेशो, राइट? 15 को नीचे ले लिया ना, अब ये रेशो, नहीं तो बराबर रेशो बराबर दिख नहीं रहा था. नाउ दिस इज cot A is equals to 8/15. नाउ ओशा छोटा के हिसाब से, ओशा छोटा के हिसाब से tan क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. पर cot tan का उल्टा होता है, राइट? तो दिस विल बी एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, राइट? एडजेसेंट ऑफ एंगल A अपॉन एडजेसेंट ऑपोजिट ऑफ एंगल A, राइट? ये समझने की कोशिश करो. देखो tan मुझे पता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. cot जो होता है उल्टा पुल्टा रिलेशन के हिसाब से tan का उल्टा होता है, राइट? तो cot डायरेक्टली याद रखने की भी जरूरत नहीं है, tan से याद रखो तो भी चलेगा. ओशा छोटा का फिर से यूज करो. तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट की जगह एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट. सो व्हाट इज एडजेसेंट ऑफ एंगल A? AB, राइट? वेरी क्लियर फ्रॉम हियर. दिस इज AB. So this is AB and opposite of angle A is BC. So AB upon BC is equals to 18/15, right? बराबर 8/15. So now, as you know, put a constant K. Just show that K is a constant. Okay. So since you know K is a constant, so equate करते हैं. So therefore from here AB will be equal to 8K and BC will be equal to 15K. ओके, तो AB क्या है हमारा? AB ये वाला रहा. AB इज इक्वल टू 8K एंड BC विल बी इक्वल टू 15K. ओके फाइन. अब हाइपोटेनस निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगाओ, राइट? इट्स अ वेरी रेपिटेटिव प्रोसेस. कम ऑन. चाहिए तो वीडियो पॉज करके खुद भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो. आई विल इनकरेज यू टू पॉज द वीडियो एंड प्रैक्टिस ऑन योर ओन. सो 90 कौन है? 90 के सामने वाला हाइपोटेनस इज AC. सो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB square plus BC square, right? So AC square will be AB is how much? 8K. So 8K square plus BC is 15K square. So this will be 64K square plus this will be 225, right? 225K square. Now add this. So 64 plus 225 करोगे. So 64 plus 225.
How much this will be? 289. Okay, 289, but k square, this is equal to AC square. Okay, simple easy calculations. Okay, so अब रूट लगाओगे तो ये AC हो जाएगा एंड रूट 289 और k स्क्वायर को लगाओगे तो k हो जाएगा, राइट, बराबर. सो AC विल बी, this is root of 289 is remember 17. Okay, so hypotenuse is turning out to be, AC is turning out to be 17k. So from here now going forward, अब almost अब triangle में सब कुछ पता चल चुका है. So now our job is pretty easy. अब आसान है हमारा काम, ठीक है. Okay, let's push this guy here. Okay, तो क्या दो चीज निकालनी है? We need sin A and cos A. तो एक में सॉरी sin A and sec A. तो sin A का तो फॉर्मूला ओशा छोटा चीक चीक के कहता है ये वाला sin A, that is opposite upon hypotenuse, right? Opposite of angle A upon hypotenuse. So what is opposite of angle A? Opposite of angle A 15k, right? Directly लिख देता हूँ, चलो 15k upon hypotenuse is 17k. So k cancel, this will be 15 upon 17. Okay, next sec A. What is sec A? sec A क्या होता है? तो sec को cos का उल्टा होता है, राइट? अगर cos यहाँ देखो, cos होता है adjacent upon hypotenuse, तो उल्टा sec cos का उल्टा होता है, तो hypotenuse upon adjacent of angle A, राइट? सो hypotenuse क्या होता है? 17k. ओके, adjacent क्या होता है? 8k. so this will be k cancel, 17 upon 8. so this guy is sec A. okay, so from here हमने question number 4 solve कर लिया. This will be these are two parts, sin A and sec A. Fine. So let's go on to the next question now. The next question after question number 4 is, as you can see, question number 4 हमने कर लिया. Question number 4 के बाद we have to go to question number 5. Okay, थोड़ी मेरी handwriting अभी बिगड़ रही है, but since you know I'm writing it slightly faster, तो थोड़ा handwriting बिगड़ रही है. You please try and adjust to it. Okay, fine. Question number 5. Let's start. It's a very similar one. So sec theta दिया है. It calculate all other trigonometric ratios. Okay, so you know the technique is, अगर एक trigonometric ratio दिया जाए और बाकी सब निकालने हो, so quickly we draw a triangle, right? और वो constant multiply करते हैं, right? बराबर. So we'll keep the same concept out here. Let's say this is triangle ABC. ठीक है, लेट्स कॉल दिस एंगल एज थीटा, क्योंकि यहाँ कुछ ज़रूरत नहीं है किसी को मेंशन करने के लिए. सो लेट्स से दिस इज ABC, और ये थीटा के सामने वाला ये होगा ऑपोजिट टू थीटा, एंड दिस विल बी एडजेसेंट टू थीटा, राइट? इट इज़ वेरी क्लियर टू दिस, सिंस यहाँ देयर इज ओनली वन एंगल, एंड ऑफ कोर्स ये होगा हाइपोटेन्यूज क्योंकि ये 90 के सामने है. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस. Okay, so sec theta is equals to 13 upon 12. Calculate all other trigonometric ratios. Okay, so since I have been given sec theta, that is 13 upon 12. Now what is sec theta? Sec theta is ulta of cos theta, right? अगर ओशा छोटा की बात करूँ तो if you look at sec theta, then sec theta is number 5. 5 और 2 एक दूसरे के उल्टे होते हैं, right? So it is cos theta is adjacent upon hypotenuse, so sec theta will be hypotenuse upon adjacent, right? Very clear. So this will be 13 upon 12. What is hypotenuse? Hypotenuse is AC, right? अब मैं थोड़ा fast जा रहा हूँ, and adjacent is BC. So from here it's quite clear that AC upon BC is 13 upon 12. So I can write down AC upon BC is equal to 13 upon 12. We'll multiply constants both sides. So therefore, now equate after putting the constant. AC will be equal to 13k and BC will be equal to 12k. ठीक है, ये आ गया 13k और ये आ गया BC कितना है? BC is 12k. Okay, fine. Okay, fine. So from here, going further, let's get the opposite by Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem के हिसाब से hypotenuse square will be, that is AC square will be equal to AB square plus BC square, right? Hypotenuse square. Okay, so this is 13k का whole square plus AB square. AB square नहीं पता, वही तो निकालना है. BC is known to you, that is 12k. So this is 12k का square. So this is 169k. This will be or k square to be precise. This is AB square plus 144k square. Now 144 को इस साइड ले लो तो 169k square minus 144k square. This will be equal to AB square.
right? Okay, fine. So 169 minus 144 is 25, and that will be 25k square. This will be equal to ab square. So reverse karte to ab square will be equal to 25k square, taking roots on both sides. So ab will be equal to 5k, right? 20 डायरेक्ट कर रहा हूँ, 25 का रूट ले लोगे तो 5 हो जाएगा, राइट? बराबर. सो फ्रॉम हियर वी हैव दिस ऑपोजिट एज 5k. ठीक है, तो ऑलमोस्ट सब कुछ पता चल चुका है. इट्स जस्ट 1 minute जॉब टू कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. कम ऑन, सिंस you know this triangle, this is 5k, this is 12k, this is 13k, let's start with sine theta. So sine theta will be opposite upon hypotenuse, right? Opposite upon hypotenuse, that is AB upon AC, right? So this will be 5k upon 13k, k cancel, this will be 5 upon 13. ठीक है, मिल गया फर्स्ट. नेक्स्ट, अब ऐसा ऑर्डर में जाते हैं, जल्दी जल्दी बाकी सब लिखते हैं. तो cos थीटा, नेक्स्ट cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट? ओशा छोटा यूज कर लेना इसके लिए. एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, दिस विल बी BC अपॉन AC. सो दिस इज 12k अपॉन 13k, k कैंसिल, दिस विल बी 12 अपॉन 13. नेक्स्ट tan थीटा. सो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन adjacent, opposite upon adjacent. So opposite is how much? 5k, adjacent is 12k. तो 5 upon 12 cancel करोगे तो this will be 5 upon, like this, 12. Okay, next will be cosec theta. cosec theta होता है hypotenuse upon opposite, right? साइन का उल्टा. So साइन का उल्टा तो 5 upon 13 का हो जाएगा 13 upon 5. ठीक है, 1 मिनट में कर सकता हूँ मैं. ठीक है, sec theta तो ऑलरेडी पता है, गिवन है, that is 13 upon 12, right? यहाँ से हमें ऑलरेडी पता है. लास्टली cot थीटा. सो cot tan का उल्टा होता है, तो cot थीटा विल बी adjacent upon opposite. सो इट विल बी 5 upon 12. जब tan है तो cot होगा 12 upon 5. ओके, फाइन. सो इस तरह से वी गॉट द सोल्यूशन टू योर क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, देख सकते हो ना, राइट? इट वाज वेरी सिमिलर व्हाट वी हैव डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. ओके, let's have a look. क्या कह रहा है question number 6. If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show angle A equal to angle B. Okay, very interesting. चलो, let's see this. So these are the two acute angles, okay, of my right angle triangle. So of course यहाँ बात हो रही है right angle triangle की ही. So let's assume A and B are the two acute angles, right? तो मैं इसको एंगल A बोल देता हूँ, इसको मैं बोलूँगा एंगल B, एंड लेट्स से ये C है, 90 डिग्री होगा. ओके, फाइन. सो मुझे ऑलरेडी दिया है दीज आर acute angles, एंड हमें बोला गया cos A is equal to cos B, राइट? वेरी इंटरेस्टिंग. एंड वी नीड टू शो क्या करना है, ध्यान से देखो, प्रूफ क्या करना है, शो क्या करना है, एंगल A is equal to एंगल B. ठीक है, ध्यान से देखना. लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट cos A. सो cos क्या होता है? ओशा छोटा को फिर से लिखता हूं, ओशा छोटा, राइट? तो cos की बात हो रही है, तो cos विल बी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस. सो cos A विल बी एडजेसेंट ऑफ एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूस. ओके, फाइन. सो हाइपोटेन्यूस तो बड़ा क्लियर है, 90 के सामने वाला ये होता है हाइपोटेन्यूस. ओके, नाउ इफ यू लुक एट ए, देन इसके सामने ये होगा, दिस विल बी ऑपोजिट ऑफ ए, ऑपोजिट ऑफ ए. तो बचा हुआ ये होगा, जाएगा एडजेसेंट ऑफ ए, एडजेसेंट ऑफ एंगल ए. ठीक है, फाइन. ओके, सो एडजेसेंट ऑफ एंगल ए विल बी ए सी एंड हाइपोटेन्यूस इज ए बी. सो देयरफॉर cos A will be AC upon AB. Right, let's call this as number 1, AC upon AB. ठीक है, no problem. Next, now let's go for cos B. So cos B will be adjacent of angle B upon hypotenuse. Right, now B को देखो, तो B के सामने ये रहा, तो ये रहा opposite of B, opposite angle B. तो बच गया ये, that this will be adjacent angle B. Right, so adjacent angle B will be BC. Right, so therefore this will be BC. Hypotenuse is same, that is AB. So therefore this is equal to cos B. Okay, चाहिए तो फर्स्ट वाले को 1 लिखो, नंबर 2 उसको लिख दो, एंड लेट्स कॉल दिस एज नंबर 3. सो फ्रॉम 1, 2 and 3 कैन आई से cos A और cos B इक्वल है, राइट?
from equation number 1 we know that this guy and this guy are equal, right? तो अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 2 3 AC अपॉन AB, ये रहा AC, ये रहा AB, दिस विल बी इक्वल टू BC अपॉन AB, राइट? दिस विल बी इक्वल टू BC अपॉन AB. सो सिर्फ कुछ नहीं किया, खाली इक्वेट किया है cos A cos B को, राइट? और इक्वेट करने के बाद देख सकते हो AB इज कॉमन ऑन बोथ साइड, सो इट विल गेट कैंसल्ड. सो वंस यू कैंसिल AB एंड AB, नाउ व्हाट you will be left with, AC will be equal to BC, राइट? इसको भी सेपरेट कर देता हूँ. AC will be equal to BC. सो फ्रॉम हियर आई हैव प्रूव्ड ये AC है और ये AB है, ये दोनों इक्वल है, राइट? बराबर. मतलब द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल. टू sides of triangle are equal. इतना हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है? अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो therefore this is isosceles triangle, right? अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उस ट्रायंगल को isosceles triangle कहते हैं, ठीक है? All three sides are equal तो that is called equilateral triangle. पर अगर दो साइड इक्वल होते हैं, जैसे यहाँ देखा AB और BC इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जाएगा, राइट? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम है. और आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम की बात आ गई तो पता है अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट वाले यानी एंगल्स, सो इसके ये और ये दोनों साइड इक्वल है, राइट? तो इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल और इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल भी इक्वल हो गए. सो देयरफॉर फ्रॉम हियर एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी. व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज एंगल्स ऑपोजिट, ये ट्राइंगल्स चैप्टर में पढ़ते हैं हम. टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ओके फाइन. ओके सो विद दिस हमने एंगल ए इक्वल टू एंगल बी से ये कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया और ये प्रूफ कर दिया. बेसिकली थोड़ा घुमा के आए, हमने कॉस को खोला, कुछ नहीं किया, सिर्फ कॉस को खोला, ओपन किया. एक बार कॉस को खोला ना तो वहां से ऑटोमेटिकली डायरेक्शन मिल गया एंड वी गॉट व्हाट वी वांटेड. ओके फाइन. सो विद दिस वी कंप्लीट विद क्वेश्चन नंबर 6. Now after completing with question number 6, let's go on to the next question. That will be question number 6 के बाद it's question number 7. थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है? ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है? ओके ओके लेट्स स्टार्ट. ओके let's start. What is given? Let's have a look. Okay, so if cot theta is 7/8, देखो अगर एक दिया है तो बाकी निकालना बड़ा आसान है, पर या तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 मैंने जो आपको सिखाया वो k वाला मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट एंड गेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो भी लगा सकते हैं इधर, पर यहाँ थोड़ा सा कुछ और टेक्निक लगाते हैं, ठीक है? वील ट्राई एंड फिगर आउट सम अदर टेक्निक के उससे कैसा कर सकते हैं. ओके फाइन. तो जरा सोचो, यहाँ कॉट थीटा दिया है 7/8. क्या दिया है? कॉट थीटा 7/8. थोड़ा सा मैं टेक्स्ट बुक पे एक और बार जाऊंगा एंड आई वांट टू विजिट माय टेक्स्ट बुक टू अंडरस्टैंड वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे समझना है, ठीक है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. ठीक है, वो अब फॉर्मूला तो एक है जो बाद में पढ़ाने वाला हूँ. ऑलरेडी मैंने शायद आप लोगों को 11 फॉर्मूलाज तो पढ़ा दिए हैं, राइट? 11 फॉर्मूलाज तो हमने अच्छे से पढ़ लिए. फाइन. तो चलो वही अब जो हमने टेक्निक सीखी ना वो यूज करते हैं. कॉट थीटा दिया है 7/8, तो यहाँ साइन कॉस की आवश्यकता है, राइट? सो व्हाट वील डू इज वील टेक अ ट्रायंगल, वील डिक्लेयर 1 एज थीटा. 1 मिनट का काम होता है ये. चलो, क्योंकि साइन थीटा मुझे नहीं पता, राइट? अब ये सब सॉल्व करने के लिए साइन थीटा लगेगा, कॉस थीटा लगेगा, निकाल लेते. सो सिंस दिस इज थीटा, दिस विल बी ऑपोजिट अपॉन hypotenuse, right? Opposite upon, I'm sorry, this is not hypotenuse. Hypotenuse 90 के सामने वाला होता है, ठीक है? ये 90 है, 90 के सामने वाला ये रहा hypotenuse, ये रहा adjacent. ओके, बेसिक ट्रायंगल. सो दिस इज A में से A, B and C. Okay, this is my angle. I'm sorry, these are my angles ही बोल सकते हैं. Better is that I call them sides. So these are my sides A, B and C. Okay, vertices A, B, C, D. Okay, fine. A, B, C. ओके, सो आउट हियर हमें दिया है कॉट थीटा. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. कॉट थीटा. सो कॉट थीटा क्या होता है? इट इज 7/8, राइट? बराबर. क्या दिया? 7/8. बट कॉट थीटा होता क्या है? तो कॉट थीटा आपको पता होना चाहिए. इट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? अभी पढ़ा था थोड़ा टाइम पहले, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. टैन का उल्टा. टैन होता है आई एम सॉरी, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट. टैन होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट.
ये एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट कहाँ से आया, ओशा छोटा ने बताया, ठीक है। जैसे tan होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये होगा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। सो एडजेसेंट क्या है भाई, यहाँ पर BC इज द एडजेसेंट and opposite is AB, right? This will be equal to 7 upon 8. So therefore from here BC upon AB will be equal to 7 upon 8. We multiply them by constant and then equate. So BC will be equal to 7K and AB will be equal to 8K, right? So ये है BC कहाँ पे भाई, BC ये रहा, let me put it by some other color. So BC is 7K and AB is the opposite, that is turns out to be 8K, ठीक है। So from here let's start and get the hypotenuse first. So story वहीं से start करते हैं। तो hypotenuse AC square पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से it will be AB square plus BC square, right? So hypotenuse AC square, AB square कितना है भाई, AB है 8K, so 8K का square plus BC is 7K, so 7K का square. Okay, so this is 64K square plus 49, right? 7 का square 49 होगा. Now what is 64 plus 49? Let me do it by my calculator. So this will be 64 plus 49. करोगे तो 113 आंसर आएगा, ठीक है। So this guy is 113K square. ये है हमारा AC square, ये है हमारा AC square. Okay, pay attention. So AC will be root of 113K. अब AC कितना आ रहा है, root of 113K. बहुत ध्यान से देखो, समझ के देखो. Okay, fine. Okay, so AC मिल गया root of 113K. Let's fall from there get sin theta and cos theta, right? हमें sin theta और cos theta की जरूरत है. So sin theta will be, tell me, opposite upon hypotenuse, right? सबको पता है. So opposite क्या है यहाँ पर? Opposite is 8K and hypotenuse is अभी अभी मिला था 113 root 113K. So ये हो जाएगा root 113K. From here K is outside the root, right? So K will get cancelled. So this guy will become 8 upon root 113. Okay. Now next we need to find out cos theta. Cos theta बड़ा simple है, adjacent upon hypotenuse ओशा छोटा के हिसाब से. So this is 7K upon root 113K. Right, so ये K cancel, so this is 7 upon root 113, 7 upon root 113. Okay, fine. So ये sin थीटा है होता है, ये cos थीटा होता है. Now एक बार sin थीटा cos थीटा मिल गया तो गेम खत्म हो गया. अभी हमें फर्स्ट पार्ट निकालना है. चलो, तो now let us find out the first part. तो थोड़ी सी जगह अगर मुझे मिल जाए तो मैं फर्स्ट पार्ट निकाल लूँ. In this page itself I'll divide this into this part. मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है. चलो, ये ऑलरेडी अब स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट में क्या इवेल्युएट करना है ध्यान से देखना. सो फर्स्ट पार्ट में यू सी यू हैव 1 प्लस साइन थीटा एंड दिस इज 1 माइनस साइन थीटा. ओके ओके, एंड डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस कॉस थीटा एंड ये 1 माइनस कॉस थीटा. सो देखो अब ये कैसा, ये बड़ा सिंपल है. You might have studied in linear equations, that is this is a plus b into a minus b. ये भी है a plus b into a minus b, right? So formula पढ़ा होगा a plus b into a minus b. क्या होता है? It is a square minus b square. Okay, so ये हो जाएगा 1 square minus sin थीटा का स्क्वायर. अब साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है मैं बताता हूँ. सिमिलरली डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर. ओके, ये 1 हो गया. व्हाट इज साइन थीटा का स्क्वायर? तो मैं बता देता हूँ. ट्रिग्नोमेट्री का जब भी साइन करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे साइन थीटा का स्क्वायर करना है तो रिमेंबर ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होएगा, ठीक है. साइन स्क्वायर थीटा इस तरह, इसको इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है. या तो उस तरह से लिख सकते हो तो उस तरह से लिखो, कोई दीज आर वन ऑफ द टू सेम थिंग्स. ओके, ये एक ही चीज़ है. पर अगर कोई भी गलत, ये सही, दिस इज द राइट तरीका. बट अगर कोई ऐसा लिखता है साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा साइन थीटा स्क्वायर, ये गलत है. साइन थीटा स्क्वायर इज रॉन्ग. इट इज नॉट साइन थीटा का स्क्वायर, इट इज साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है. अंडरस्टैंड द डिफरेंस. साइन थीटा का जब स्क्वायर करेंगे तो साइन पे स्क्वायर आएगा, थीटा पे नहीं. आई रिपीट वंस अगेन, साइन पे स्क्वायर आएगा, थीटा पे नहीं आएगा. ओके, सो फ्रॉम हियर इफ यू लुक 1 square is 1. What is sin theta? Sin theta is 8 upon root 113.
सो ये उसका हो जाएगा स्क्वायर, एंड इन द डिनोमिनेटर इफ यू सी व्हाट इज देयर, इट इज 1 माइनस cos थीटा इज 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर दिस विल बी 1 माइनस 8 का स्क्वायर इज 64, ये डायरेक्टली कर रहा हूँ, 113 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, राइट, बराबर. आई एम डूइंग दिस कैलकुलेशन, दिस विल बी 49, ये 113 नीचे आएगा. ना इफ यू सी वी नीड टू टेक एलसीएम, तो ये क्रॉस ऊपर चला जाएगा, तो 113 माइनस 64 अपॉन 113, दिस विल बी 113 माइनस 49 अपॉन 113. ठीक है, सो ये कैलकुलेशन बड़े बेसिक है. मैं अगर समझ में आए तो समझ में आना ही चाहिए. ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर को 1 ही रहेगा, राइट, उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सब क्रॉस होते हैं. फाइन, सो दिस इनटू दिस 113 इनटू 64, लिटरली लाइक दिस. सो फ्रॉम हियर इफ यू सी वेरी क्लियरली, रूट 113 दोनों के डिनोमिनेटर में तो कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल बी 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49. ओके, सो 113 माइनस 64, so what is 113 minus 64? I'm sorry, 64 is 40, I'll do it again. 113 minus 64, 113 minus 64, तो 49 होता है. और अगर इसको कैलकुलेट करोगे 113 माइनस 49 करोगे तो 64 आंसर आएगा. तो आंसर विल बी 49 अपॉन 64. सो जो भी है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 49 अपॉन 64. नाउ लेट मी डू द सेकेंड पार्ट वेरी क्विकली यार, 1 मिनट की बात है. अब सेकेंड पार्ट में मुझे निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा. सो कॉट स्क्वायर थीटा हमें पता है, इट विल बी कॉट थीटा का स्क्वायर, राइट, बिकॉज स्क्वायर हम हमेशा तो कॉट पे डालना है, थीटा पे नहीं. ओके, सो व्हाट इज कॉट थीटा? फ्रॉम हियर इट इज 7 अपॉन 8, सो दिस इज 7 अपॉन 8, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 8 का स्क्वायर. सो दिस विल बी 49 अपॉन 64. ओके, सो एक्चुअली स्पीकिंग दोनों पार्ट्स का आंसर एक ही आया, 49 अपॉन 64 एंड 49 अपॉन 64. सो विद दिस वी कंप्लीट विद क्वेश्चन नंबर 7.